चलिए, सब लोगों ने रिप्लाई भी कर दिया है, इस पे पोल को एंड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक बच्चे ने बोला है सर प्रीवियस क्लास का रिवाइज करा दो, तो मैं जस्ट एक झलक दूंगा छोटी सी आपको प्रीवियस क्लास की, और फिर क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। प्रीवियस क्लास की एक छोटी सी झलक दे रहे भाई, कैसे? मैंने पढ़ाया था आपको व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन, which includes your first property. That means if fx has a period t, then 1 upon fx and root fx also have a period capital T. Second one, fx has a period t, then f ax plus b has a period t upon magnitude of a. Third property was about constant functions. So every constant function defined for all real x is always periodic with no fundamental period. The next one is for addition, subtraction, and multiplication and division functions. How to calculate the period of two functions which are in combination with addition or subtraction or multiplication or division. So for that we calculate the LCM for the function fx, which is your first function. We have its period. If it is a periodic function, we have its period t1, and another one we have gx, whose period is t2. So we can calculate the LCM of t1 and t2. तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला. Last is about composite functions, and composite function, so far we don't have any idea about composite functions because we didn't read it, we didn't learn it. So today we are going to start with composite functions, but initially we have to solve some questions depending upon these properties. So get ready for this. हाँ, आज सुनाएंगे. चलिए, तो ये वाला बैक साइड का पार्ट है यार, इस पे क्वेश्चन लेंगे तभी आपको हर एक चीज क्लियर होगी. तो एक एक क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार हैं सारे के सारे यार, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, आपसे आंसर पूछता जाऊंगा, ठीक है बेटा? चलिए, तो हम क्या ले रहे हैं? ये है आपका पहला क्वेश्चन, आपको इसका पीरियड बताना है. बताइए सब लोग, पीरियड बताना है इसका. अगर ये पीरियोडिक है तो क्वेश्चन मैं वापस से लिख भी देता हूं. fx इज इक्वल्स टू कितना है? साइन x बाई 2, एंड ये कितना लिखा हुआ है? cos x बाई 3. इसका पीरियड बताना है आपको. दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद द एडिशन रिलेशन, addition operation, and we have to calculate what we have to calculate? Its period. If it is a periodic function, we have to calculate its period. Try hard, please try hard to find its period, because if we go through these questions, some basic concepts of your periodicity will covered by these questions. So many people have answered it. Everybody is typing an answer of 12 pi, 6 pi. Right. Now, sine, we know about sine x. Sine x is periodic with 2 pi. And we have a property, if your fx is periodic with period t, then fax is periodic, is also periodic and has a period of t upon magnitude of a. That means sine x is periodic with 2 pi, sine x by 2 is also periodic and its period is 2 pi divided by 1 by 2, which is 4 pi. Similarly, cos x is periodic with 2 pi, but we don't have cos x, we have cos x by 3. That means your period will be 2 pi divided by 1 by 3. That means 6 pi. We have sine x by 2 is periodic and its period is 4 pi.
Likewise, cos x by 3 is periodic with period 6 pi. Now we have to calculate the LCM of both the functions sin x by 2 and cos x by 2 because they are associated with an addition operation, and we have studied that if two functions are associated with addition, subtraction, multiplication and division, their period, if they are periodic, then period can be calculated by using the LCM symbol. मतलब अगर मेरे पास दो ऑपरेशन दे रखे हैं, दोनों ऑपरेशंस जो हैं, दो फंक्शंस दे रखे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से एसोसिएटेड हैं, तो उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है बेटा? देयर एलसीएम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस अप्रोच व्हिच इज 4 pi, 6 pi, and we have studied that it is a LCM of rational quantities. That means rational quantities LCM can be calculated by using LCM of numerator, this formula, LCM of numerator and HCF of denominators. But we only have one in the denominator. That means your HCF will be 1. But LCM, there is a thing common, which is pi. Pi can be take out as a common part. Next, we are left with 4, which is 2 into 2, 6, 2 into 3. There is a common part, which is 2. By taking LCM, we know we take a common part separate. Next, we are left with 2 and 3. That is your LCM, which is 4 into 3 is 12. That means 12 pi. तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका यार? ये जो एलसीएम है ना इसका, ये पूरा का पूरा कितने के बराबर आ जाएगा? 12 pi. Most of the student answered it as 12 pi and which is very right. ठीक है, 6 pi नहीं है आंसर, सीधा सीधा कितना है? 12 pi. आप फिर से समझ लीजिए, जिसको मैं समझ में नहीं आया, जिसको सिर्फ हिंदी समझ में आती है. sin x by 2 and cos x by 3 ये मेरे पास दे रखा है. sin x का हमने पढ़ा था कि 2 pi अगर पीरियड है तो fx अगर t पीरियड रखता है तो fax कितना हो जाएगा? t अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a. तो sin x by 2 का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 pi डिवाइडेड बाय इसके साथ x के साथ कितना मल्टीप्लाइड है? 1 by 2, वो हो जाएगा 4 pi. नेक्स्ट, cos x का पीरियड कितना है? 2 pi. cos x by 3 कितना हो जाएगा? 2 pi डिवाइडेड बाय 1 by 3 मतलब 6 pi. तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 pi, 6 pi. इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 pi. और एलसीएम कैसे निकलता है? ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ. एलसीएम में हमेशा कॉमन पार्ट बाहर निकाल लेते हैं. इरैशनल क्वांटिटी है पाई, तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे. 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा. मतलब ओवरऑल अपना आंसर आ जाएगा 12 पाई. अगर किसी को दिक्कत है प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए. अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो यस चैट में यस या डन लिखिए. इफ यू हैव अ डाउट प्लीज रेज योर हैंड. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज राइट यस और डन इन द चैट ऑप्शन. Good, बढ़िया. Good. Magnitude of mod of शांतनु सर, magnitude of A मतलब mod of A. Yes, correct. Yes, correct. हाँ, इसके बाद मयूर, इसके बाद क्वेश्चन करो. कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ाने जाऊंगा. कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं पीरियोडिक फंक्शन टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. हम लोग वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस हियर. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए. क्या सब लोग तैयार हैं? अगले क्वेश्चन के लिए पेन कॉपी ले लीजिए. सब लोग तैयार हैं? तो भैया अगला क्वेश्चन आ रहा है और ये है अपना अगला क्वेश्चन. आंसर बताना है आपको. fx is equals to curly bracket x plus sin x. We have to calculate its period if this function is periodic. If it is not periodic, simply write aperiodic in your text or chat option.
If it is a periodic function, write your period. If it is not a periodic function, write a periodic in your chat option. So many students have answered not periodic or aperiodic. Yashanki has given a very good answer. I'm going to unmute some of you and will ask about the reason why it is aperiodic. So we'll start asking this with Aditya. Aditya Shinde, are you here? Aditya, Yes, am I sir. audible? Yes, sir. हाँ, तो क्या है इसका पीरियड? क्या ये पीरियोडिक है, अपीरियोडिक है? Sir, part function फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, करेक्ट. periodic नहीं है. पीरियोडिक नहीं है. और साइन फंक्शन? Sir, sin function periodic है. साइन फंक्शन पीरियोडिक है. तो एक पीरियोडिक एक अपीरियोडिक फंक्शन. तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया? अपीरियोडिक. यही शिंदे, करेक्ट? Yes, sir. गड़बड़ है शिंदे इसमें थोड़ा सा. आदित्य, सोचना पड़ेगा इसको. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, most of the student have the same confusion. It is it periodic or aperiodic? आपको पता है क्या इसका ग्राफ क्या होता है? नहीं. हाँ, तो आप नहीं, कैसे कह सकते हो कि पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है? I'm confused, sir. हाँ, तो कोई बात नहीं है, इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है. हम सीखने के लिए हैं आदित्य, है ना? Yes. We are here to learn. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुमको बाई चांस कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो टेंशन नहीं है यार, ठीक है ना? Yes. चल, अलका. Yes, sir. अलका, Yes, sir. बताओ. Yes, sir. पीरियोडिक अपीरियोडिक? Sir, periodic. पीरियोडिक. व्हाई? Yes, sir. Sir, because x अगर हम fx का वैल्यू कोई भी x तो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा सर, और वो तो पीरियोडिक होगा. और sin x भी पीरियोडिक ही है, इसलिए फिर ये पीरियोडिक फंक्शन है, पर इसका पीरियड नहीं पता सर. इसका पीरियड नहीं पता. अलका, हम भी गलत हैं, ठीक है, आप भी गलत हैं. तो थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा. तुमने बोला कि पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है, ये भी. क्या तुम्हें इसका ग्राफ पता है क्या पार्ट फंक्शन का, फ्रैक्शनल पार्ट का? फ्रैक्शनल पार्ट पता नहीं सर. नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं. फ्रैक्शनल पार्ट का यहाँ पे थोड़ा अच्छा रोल है, इस वजह से फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अब बताऊंगा. चलो पप्पन. सर आपने उस दिन बताया था sin x प्लस 1 करेंगे तो एक ऊपर का 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा ग्राफ. बिल्कुल बताया था. ये यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा पप्पन यार. एडिशन ऑफ फंक्शन तो रहेगा, लेकिन वैसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस उठाए. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सब लोगों ने, काफी लोग सही सही आंसर दे रहे हैं. नहीं, x प्लस कॉस एक्स का ग्राफ मैंने बना के भेजा था, वो भी पीरियोडिक नहीं था यार, ठीक है? अब सब लोग एक बार सामने देखो. मैं पहले आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझाऊंगा, बस चैट में मत लिखिए, क्योंकि ऐसे अपना टाइम वेस्ट होगा, फिर हम स्टोरी नहीं सुन पाएंगे यार, ठीक है? तो अपने पास क्या है यार, ये करली ब्रैकेट x है ना? इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं पहले. करली ब्रैकेट x होता है x माइनस बॉक्स x, और बॉक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन.
आई होप आप में से काफी लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो सब लोग सामने देखेंगे यार। मैंने एक फंक्शन लिया gx इज इक्वल्स टू बॉक्स x, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप उसके अंदर कुछ भी डालिए, अगर आपने इंटीजर क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट किया है तो वो सिर्फ इंटीजर आंसर देगा। अगर आपने इंटीजर क्वांटिटी नहीं सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो वो हमेशा आपको जो आंसर देगा वो एक इंटीजर क्वांटिटी ही आंसर देगा। कैसे, सब लोग सामने देखेंगे। ये बताने की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ये बार बार यूज होगा आपके 12th में। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन that it will give you the answer 0 if we substitute the value in between 0 to 1. अगर आप 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो आपको कितना आंसर देगा यार, 0 आंसर देगा, ठीक है। सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर 1 and 2. If we substitute the value in between 1 and 2, greatest integer function will give you the answer 1. अगर आप 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 1 देगा। मतलब अगर बाई चांस मैंने डाला इसमें 0.5 तो बॉक्स में गया 0.5 को देखा बॉक्स ने, वो कहां पे आ रहा था, 0 से 1 के बीच में, आंसर बिना कुछ सोचे 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बाई चांस मैंने 1.8 डाल दिया, बॉक्स में गया कितना, 1.8, भाई जहां पे x है वहीं पे तो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 1.8 पे बॉक्स लगाया तो कितना आ जाएगा, अपना आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू आप चूज करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। 3 से 4 के बीच की 3 आ जाएगा। -1 से 0 के बीच की हमेशा एक पीछे वाले इंटीजर क्वांटिटी -1। -2 से -1 के बीच के कितना आ जाएगा, -2। मतलब आप बोलोगे सर I want to substitute a value -1.8 in this greatest integer function. What will be my answer? Then I would suggest your answer would be -1.8 greatest integer function. It will give you -2 because -1.8 lies in between -2 to -1. Just you mark it here, and once you get -1.8 is located in between -2 to 1, your answer will be -2, ठीक है। इतना हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है, डायरेक्टली बिना कुछ सोचे। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप लोगों का मुझसे क्वेश्चन हो सकता है सर व्हाट इज अबाउट इंटीजर क्वांटिटीज। इफ आई सब्स्टिट्यूट 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल गिव यू 0। इफ आई सब्स्टिट्यूट 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल गिव यू, GIF भी बोलते हैं इसको, GIF भी बोलते हैं, ये आ जाएगा अपना कितना, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा, अगर 1 डालेंगे तो 1। फॉर ऑल इंटीजर क्वांटिटीज योर आंसर विल बी द सेम integer quantity which you have substituted in your greatest integer function, and this is all about GIF. ये फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आता है। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। हाँ, अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। fx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, ये इसकी डेफिनेशन होता है। आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपने डाला 0.5 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 माइनस बॉक्स ऑफ 0.5, 0.5 माइनस बॉक्स ऑफ 0.5 इज 0, आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट 1.5 डालेंगे तो 1.5 माइनस बॉक्स ऑफ 1.5, 1.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, फिर से 0.5। मैं -2.7 डालूंगा तो यहां पे आ जाएगा, करली ब्रैकेट में डल रहा है सब कुछ, ये आ जाएगा -2.7 माइनस बॉक्स ऑफ -2.7 -2.7, और ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर विल बी 0.3। आप बोलोगे सर कोई इंटीजर डाल दो, तो इंटीजर डाल के देख लेते हैं। -1 माइनस बॉक्स ऑफ -1, ये -1 प्लस 1, आंसर वुड बी 0। +2 डाल देते हैं तो +2 माइनस बॉक्स ऑफ +2,
ये आंसर आ जाएगा 2 minus 2, आंसर वुड बी 0. दैट मीन्स अगर आई वॉन्ट टू प्लॉट the graph of this fractional part function, just give me a second. So this will represent your graph. If we observe the pattern of this fractional part function, it will always give you the value in between 0 to 1 at non-integral quantities. And at integer quantities, your answer would be always 0. We have checked for -1 and 2, your answer will be 0 in both the cases. And we have checked for 3 different values, values other than integral quantities, which is 0.5, 1.5 and -2.5. And your answer would always be in between 0 to 1. That means your fractional part function will always give you the value in between 0 to 1 and 0 at all the integer quantities. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपको 0 देगा किस जगह पे 0 देगा सारी इंटीजर क्वांटिटीज पे, और बाकी जगह पे क्या मिलेगा जहां पे भी आप इंटीजर नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहां पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी हो, मतलब 0 to 1 के बीच में आपको वैल्यू मिलेगा. तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं ना बेटा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है. हम ज्यादा टाइम इस पे और स्पेंड नहीं कर सकते, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब लोग ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ये सब इंटीजर क्वांटिटीज है. 1 2 3 4 0 -1 -2 -2 -3. ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये आपका कितने के बराबर होता है 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है करली ब्रैकेट x, उस करली ब्रैकेट x का रेंज जो होता है वो आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगा. ठीक है, और क्लियरली पता चल रहा है मेरे को, ध्यान से देखोगे ना सब लोग, क्लियरली पता चल रहा है मेरे को, ये क्लियरली पता चल रहा है. 0 to 1 के बीच में आपका सिमिलर ट्राइंगल टाइप बन रहा है. ये ट्राइंगल वापस से उठ के कहां पे आ गया है, 1 to 2 के बीच में. 1 से 2 वाले ट्राइंगल को आपने आगे रख दिया है, 2 से 3 वाले को आगे रख दिया. बिल्कुल वैसा ही पिक्चर आपको लग रहा है. मतलब आप ये लाइन देखो जो 0 to 1 के बीच में जा रही है, सेम लाइन 1 to 2 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 2 to 3 के बीच में, 3 to 4 के बीच में. इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक, विद पीरियड कितना है बेटा इसका 1. रीजन क्या है, देखो एक साइकिल कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, और दूसरी साइकिल 1 से शुरू हो रही है. दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है यार, 1 यूनिट का. दैट मीन्स योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज पीरियोडिक. कंक्लूड कर रहा हूं, fractional part function is periodic with period equals to 1. Your fractional part function is periodic with period equals to 1. चलो भाई, मैक्सिमम लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, आई होप. If you have any doubts, raise your hand. If you don't have any doubt, please write yes or done in the chat option. सब लोगों को नोट भी करना है, सब लोगों को नोट भी करना है. जो कुछ भी मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में बताया प्लीज नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन. अब इसका यूज करने वाला हूं मैं, कहां यूज करने वाला हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए.
हाँ चलिए, काफी लोगों ने, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, सब लोगों का यस और डन आया। आ जाते हैं पिछले क्वेश्चन पे। This was our question, so we'll take a next page. Fx is equals to curly bracket x plus sin x. Am I right? Yes, sin x. So what is the period of curly bracket x? It was 1. Yes, it is periodic with period 1. What is the period of sin x? Is 2 pi. So we have these two functions are associated with only operation, which is addition. That's why we have to take LCM of these periods, which is 1 comma 2 pi. Still, the combination of these two functions by addition operation is aperiodic. Reason क्या है बेटा? What is the reason? Aperiodic है because curly bracket x has a period 1 and sin x has a period 2 pi, and we don't have any common in between 1 and 2 pi. 1 is a rational quantity and 2 pi is an irrational quantity. That means there is nothing we can take as an LCM. That's why we can say that there is no value of this LCM operation applied on 1 and 2 pi, because 1 is a rational quantity and 2 pi is an irrational quantity. That's why we can say that this is a aperiodic function. Aperiodic function. LCM नहीं निकाला जा सकता है, क्यों? क्योंकि 1 आपका कैसा आ रहा है? रैशनल ऑपरेशन, एंड पाई इज इरैशनल ऑपरेशन। कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो पिछले जितने भी केसेस हम लोगों ने सॉल्व किए ना, पिछले जितने भी थे, इसमें देखो 4 पाई 6 पाई, तो पाई हम लोग कॉमन निकाल लेते थे, इरैशनल पार्ट को हम लोग कॉमन निकाल लेते थे, और 4 और 6 का क्या ले लेते थे? एलसीएम ले लेते थे, जितने भी क्वेश्चन हमने किए। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वह पाई यहां पे कॉमन लेने के लिए है नहीं हमारे पास, तो सीधा सीधा कोई भी चीज इनमें से कॉमन नहीं आएगी, फंक्शन कैसा हो जाएगा? अपीरियोडिक फंक्शन। स्टिल, given that your fractional part function is periodic and your sin x is also periodic, both functions which are given to us is periodic, but their combination is aperiodic because of rational and irrational period. ठीक है, यहां तक अगर आप सब लोगों को समझ में आया तो बताइए। नहीं बेटा, 2 पाई 360 के बराबर है, वो रेडियन मेजर है और वो डिग्री मेजर है। 1 डिग्री में नहीं मिला हुआ है आपको, 1 डिग्री में नहीं मिला हुआ है। ठीक है, फटाफट बताइए अगर समझ में आए तो। इनवर्स इसका पॉसिबल होगा या नहीं बेटा? इसका इनवर्स नहीं निकाला जाएगा, नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अनीशा ने क्या पूछना चाहा है, बताओ अनीशा। सर यहाँ पे जो पार्ट फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट है। इतना सब कुछ बताया तो तुम मिस कर गई क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये, और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एफ पी एफ बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वो अलग फंक्शन है, उसका ये रिजल्ट आता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वाला है। अनिशा, यस सर। नहीं ये बात समझ में? यस सर, आ गया। आ गया? आ गया सर। हाँ, आज उसके Thank you, बाद और कौन था यार? आदित्य सिंह, तुमने हैंड रेस किया था, बताओ बेटा। आदित्य अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं आदित्य, मैं तुम्हें अनम्यूट नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, अपना कुछ डाउट है तो पुट कर दो यहाँ पे। अपना कुछ डाउट है तो यहाँ लिख दो आदित्य, मैं तुम्हें अनम्यूट नहीं कर पा रहा। आदित्य सिंह। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुम अपना डाउट लिख देना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी। ये आंसर बड़े आसानी से आना चाहिए सबका। जल्दी बताओ कितना आंसर है, जल्दी जल्दी आंसर लिखना चैट में।
चलिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है, कौन है? चिन्मयी सर, जो 0.5 माइनस, हाँ क्योंकि बॉक्स 0.5 का आंसर कितना देता है बच्चे? 0। देखो यहां पे देखो ना, 0.5 का आंसर बॉक्स ने कितना दिया था? 0, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। तो 0.5 माइनस बॉक्स 0.5, बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 0। ये इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, हाँ किसी ने बोला सर ये कल करा दिया था, बहुत सही है, तो इसलिए इसको फटाक से उड़ाते हैं। कॉस का पीरियड बताओ कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई, और कॉस 3x का कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। बस बेटा आपको इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 पाई, नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना हो गया? 2 पाई। पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, 2 नहीं बेटा 2 पाई। पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई करेक्ट है। 6 पाई ईश्वर गलत है। तुम लोग एलसीएम पता है कैसे ले लेते हो? ये 3 का एलसीएम इधर ले लेंगे तो 6 पाई इधर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं बेटा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ऊपर वाले का एलसीएम 2 पाई, नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास में? 3। ठीक है, पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, बहुत ही तेजी से रास्ते में है, बस पहुंच गया। ये लो, जल्दी सॉल्व करो, आंसर दो, तो हम कंपोजिट फंक्शंस पे जा पाए। पीरियोडिक है, yes I know this is periodic, but you have to calculate its period. Find its period. Ritesh, you have raised your hand. Ritesh, where are you? Ritesh, where are you? You raised your hand. Do you have any questions? Ritesh, unmute yourself. Right, everybody is given a different answer. Everybody is giving a different answer. चलिए, लेट्स डू इट बाय ओन माय ओन। कितना है साइन x का? कितना हो जाएगा अपने पास में? 2 पाई। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3/2, क्योंकि 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3/2। नेक्स्ट, cos x बाय 3, 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/3। भाई माइनस या प्लस कुछ भी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा tan x के केस में कितना हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय 2/3। इन सब का अपने को क्या निकालना है बेटा? LCM। तो LCM ऑफ दिस इज 4 पाई divided by 3. This is your 6 pi upon 1, 3 pi upon 2. That means LCM of 4 pi, 6 pi, 3 pi and HCF of 3, 1 and 2. LCM of 4 pi, 6 pi and 3 pi and HCF of 3, 1 and 2 कितना आ जाएगा बताओ जरा? ऊपर वाले में पाई तो आ ही जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 4 को 2 into 2, नेक्स्ट 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 एंड 3 को लिख सकते हैं 3। तो बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो भी है अपने पास में पार्ट, वो कितना हो जाएगा? 3 यहां से आ ही रहा होगा, 2 यहां से आ ही रहा होगा, 2 यहां से आ ही रहा होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा बेटा इसका आंसर? बताओ सब लोग। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कुछ ने बोला 72 पाए, कुछ ने बोला 12 पाए, किसने बोला कुछ। एलसीएम निकालना आता है क्या हम लोगों को? इसका एलसीएम बताओ। 4 है 2 into 2, 6 है 2 into 3, 3 है 3। बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा?
जल्दी, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा यार। कैसे 12 हो जाएगा? देखो इन दोनों जगह पे कितना आ रहा है अपना, 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है अपना 3 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है अपना 2 आ रहा है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो एलसीएम का कितना आ जाएगा? 12 पाई। एचसीएफ का कितना आ गया अपना? 1। 12 पाई इज द आंसर। करेक्ट है यार। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। क्वेश्चंस में हम काफी बोर हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट, एंड इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज राइट yes or done in the chat option so we can move forward. Yes, Anisha, what is it? सर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या था? वो cos x into cos 3x वाला। ये देखो सामने स्क्रीन पे। 2 पाया। यस सर। और सर एक डिवीजन वाला एग्जांपल दे दीजिए ना। डिवीजन वाले में इसी को डिवाइड कर लो, cos x upon cos 3x। ओके सर। हाँ आदित्य। यस सर, अगर हमें क्वेश्चन में जैसे पार्ट फंक्शन आया था पिछले क्वेश्चन में, ऐसे डिफरेंट फंक्शन आएंगे, अगर हमें उसके पीरियड नहीं पता है तो कैसे? तो आप देखो इनिशियली तो आपको मुझसे ही पूछना पड़ेगा, है ना, सर ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आपको ग्राफ पता ही नहीं है, ठीक है। जब भी आप कभी डिफिकल्टी फेस करो ना, आप मुझसे पूछ लो, ठीक है ना। तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा ना सारे टाइप के फंक्शंस का। आप सर्च भी मारोगे ना, नेट पे सर्च मारो सारे पीरियोडिक फंक्शंस, अपने आप निकाल के दे देगा वो आपको लिस्ट, ठीक है। क्योंकि आपके स्कूल में हो सकता है कि 11th क्लास में आपको जो ग्राफ्स बताए गए हो सकता है नहीं बताए गए हो। हम तो मैक्सिमम जितने भी होते हैं ना सब बता देते हैं ग्राफ, तो बच्चों को ग्राफ ऑलमोस्ट पता होता है, ठीक है। जब मैं उसके सामने ग्राफ बनाता हूं, जैसे लॉग मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा आप पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि मुझे उसका ग्राफ पता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप पीरियोडिक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आप पीरियोडिक फंक्शंस है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है, तो हम बच्चे को पहले से बता के चलते रहते हैं लगातार। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है मॉड्यूल को सॉल्व करने में कहीं पे भी ना, तो आप मुझसे पूछते जाओ, ठीक है। वो धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके। 1 पल्लवी 1 लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना एजेंडा कुछ और है यार। आज हम लोग कौन सा सॉल्व करना चाहते हैं? एक सेकंड रुक जाओ, ये कौन सा है? इनवर्स नहीं, आज इनवर्स का मूड नहीं है। इनवर्स से पहले हम लोग नेक्स्ट हेडिंग है यार कॉम्पोजिट फंक्शन। हाँ क्या होगा पल्लवी तुम बताओ? कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3, 1 और 2 में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 1 रहेगा, और कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। पल्लवी पल्लवी अनम्यूट करो, पल्लवी हैंड रेज करो बेटा, ठीक है। 3, 2, 1 के अंदर कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलो भाई नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, और ये कंपोजिट फंक्शन है उसके क्वेश्चंस है। तो बेटा मैं कंपोजिट फंक्शन का जो भी समझाऊंगा ना, ये थ्योरी कुछ भी लिखा हुआ है, आप लोग को जो मैं समझाऊंगा ना इसके ऊपर, इसमें ब्लैक स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सब लोग इस ब्लैक स्क्रीन पे ध्यान देंगे, और जब आप नोट्स पढ़ रहे होंगे ना तब भी ब्लैक स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो देखो यार हमारे पास क्या फंक्शन दे रखा है, ऐसे ध्यान से देखो। एक मेरे पास x दिया गया है, उसको मैंने fx में अप्लाई कर दिया, f के अंदर अप्लाई किया, उसने बना दिया आपको fx। फिर इनपुट के तौर पे इस fx को मैंने किसी g में अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास बन गया कितना? g ऑफ fx। इसको डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं GOF, इसे गॉफ बोलते हैं, ठीक है। फिर से सुन लो, ये x किसका इनपुट बना? f फंक्शन का,
उसे आउटपुट आया fx, ये fx किसका इनपुट बना, g फंक्शन का, उसका आउटपुट आया g ऑफ fx। तो हम डायरेक्टली g ऑफ fx निकालना चाहे तो गॉफ ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं। देखो g से ये x कनेक्ट हुआ, इसमें हमेशा f के अंदर लग गया था ना x, ऐसे ही इसके अंदर लग जाएगा और डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। तो दो फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस का क्या मतलब होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अगर g ऑफ f(x) लिखा हुआ है, इसका मतलब g ऑफ fx रहेगा ये। मतलब जहां gx में पहले x हुआ करता था ना बेटा, हमने उसको उठा के इसके अंदर डाल दिया। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, ये प्रॉब्लम है कि g ऑफ fx आएगा तो इसका डोमेन कहां से चूज करना चाहिए और इसका रेंज कहां से चूज करना चाहिए, ठीक है, या कोडोमेन कहां से चूज करना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे पास फंक्शन f दे रखा था, वो a टू b दिया गया था, डोमेन ऑफ f and b is your codomain of f, and next one was given g as c to d. C is your domain and D is your codomain. Now we have to calculate this same kind of expression, their domain part and codomain part for G of f. G of f. According to the question, G of f(x) means is a function which consists another function, मतलब g जो है वो fx को अपने अंदर रख रहा है। तो जो x की वैल्यू जानी चाहिए वो अभी भी कहां से चूज होनी चाहिए, कहां से चूज होनी चाहिए, f से चूज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि fx जो आपका फंक्शन है उसमें x कहां से चूज हो रहा है, यहां से चूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं सीधा सीधा लिखना चाहूं तो जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसी का डोमेन आपके फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, गॉफ फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का। जो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन होगा, डोमेन मतलब f कहां से वैल्यूज चूज कर रहा है, x इज चूजिंग वैल्यूज फ्रॉम a, दैट मींस आपका g ऑफ fx में जो x रहेगा ना, fx वाला x, वो भी कहां से वैल्यू चूज करेगा, a पार्ट से ही चूज करेगा। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ गॉफ। यहां पे फंस जाते हैं हम लोग। देखो बेटा, जो भी कोडोमेन आएगा ना, ये गॉफ का कोडोमेन आएगा ना, ये वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए बेटा, इसकी रेंज ही तो हुई ना एक तरीके से। भाई कोडोमेन नहीं है, f(x) जो है ना वो मेरे को x पे जो भी वैल्यूज देगा वो किसकी वैल्यूज मिलेगी भाई, fx की। जब x की जगह आपने डाला कितना, a सेट से आप x डाल रहे हो, तो fx जो है वो बिलोंग तो कर रहा होगा किसको, b सेट को, लेकिन ये fx की वैल्यूज क्या कहलाती है बेटा, रेंज कहलाती है ना। तो इसका मतलब जो रेंज आ रही है आपके fx की, वो आपके g फंक्शन जो है, जो g बाहर वाला फंक्शन है, उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। फिर से सुन लो ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि g ऑफ fx में x कहां से वैल्यू चूज करेगा, यहां से चूज करेगा, ठीक है, f के डोमेन से। और जो fx की वैल्यू आएगी, दैट मींस द रेंज ऑफ fx, अगर वो g का डोमेन का सबसेट हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि g ऑफ fx एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है, अगर बाई चांस fx जो है वो ऐसी वैल्यू दे दे जो gx के डोमेन को बिलोंग नहीं करती है, तो वहां पे आपका gx फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अंदर अगर नॉट डिफाइंड हो गया, g फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसका मतलब है कि हमको क्वेश्चन में g ऑफ fx निकाल ही नहीं पाए हम लोग। फिर से सुन लो, मुझे x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है जो fx को डिफाइन कर सके। fx डिफाइन होगा, साथ के साथ जो fx की वैल्यूज आएंगी, मतलब रेंज ऑफ fx आएगा, वो बाहर वाले फंक्शन का क्या होना चाहिए, डोमेन का सबसेट। क्योंकि अगर उसके डोमेन से बाहर आ गया तो g फंक्शन डिफाइन नहीं होगा और आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो g फंक्शन जो आंसर देगा ना, वो अभी भी अपने कोडोमेन का ही सबसेट देगा,
तो यहां पे आना चाहिए कोडोमेन ही। ठीक है, अब मुझे पता है आपके दिल में हजारों क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो मैं इसे एक तरीके से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पहला सुन लो, f अगर a टू b है, g आपका c टू d है, तो गॉफ में fx जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डोमेन आ जाएगा, और जो बाहर वाला फंक्शन है उसका कोडोमेन आ जाएगा। अब गॉफ फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं, तो गॉफ को डिफाइन होने के लिए हमें करना क्या होगा यार, जो अंदर वाला फंक्शन है, कंडीशन यही है कि गॉफ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ओनली इफ fx, range of fx is subset of domain of gx। अगर आपका रेंज ऑफ fx का जो रेंज है वो gx के डोमेन का क्या हो गया बेटा, सबसेट, तभी आप बोलोगे कि f of gx डिफाइन होगा। क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन हमने हमेशा आपको यह बताई है, डोमेन x की ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन्हें उठा के अगर मैं फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा रिजल्ट नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। डोमेन इज द all the values of x which we, if we substitute these values into your function, then your function should always have a finite value। तो ऐसी values, all these kind of values of x will be called as domain। ऐसी values of x को बोला जाएगा domain। तो देखो बेटा, gx में अभी कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा रही है, fx। fx का जो रेंज ही तो हुआ ना, fx से जो वैल्यू आई वो रेंज ही हुई, तो जो रेंज ऑफ fx है ना, उससे आपका gx नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। इसलिए रेंज उसके डोमेन का सबसेट या प्रॉपर सेट अगर हो जाएगा तो ये काम हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बताओ, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज चैट में यस या डन लिखिए, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूं। हाँ भाई, एक एक करके पूछेंगे। तो ईश्वर बताओ। सर मतलब जो गॉफ है उसका कोडोमेन किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा ना? किसका? गॉफ का। गॉफ का कोडोमेन तो सीधा जी का जो कोडोमेन आ रहा है वही आएगा। हाँ, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा ना? नहीं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ईश्वर, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बेटा, सही बोल रहे हो आप। और कोई भाई, और कोई किसी को डाउट नहीं है तो चैट में फटाफट यस या डन लिखिए यार, ताकि मुझे समझ में आए, मैं क्वेश्चन करा सकूं आपको। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही है। 150 लोग हैं, सबका आउट मेरे को चाहिए रिप्लाई, अदरवाइज होगा क्या, दिक्कत हो जाएगी। एक क्वेश्चन लेंगे, चलिए चलिए चलिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं यार, उस क्वेश्चन से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए सबसेट ऑफ सी नहीं है, नहीं प्रांशु, ऐसा नहीं है। चलिए, ए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ए तो जो एफ एक्स में डालने वाली वैल्यूज है बस वो सीधा, और डी जी का पार्ट है, कोई गड़बड़ नहीं इसके अंदर। हाँ, कैन बी इक्वल टू, इसीलिए मैंने प्रॉपर सबसेट का सिंबल भी लगाया इसके अंदर। नीचे देखो, सबसेट के नीचे एक एरो भी, वो भी डंडा भी लगाया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है यार, डील। चलिए, तो हम निकाल रहे हैं फॉग या गॉफ, तो मैं फॉग निकाल के दिखाऊंगा, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को बोला जाता है फॉग। कंडीशन इसमें भी वही लगेगी, क्या लगेगी, अंदर वाले फंक्शन का जो क्या है रेंज, वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट। कंडीशन इसमें भी वही लगेगी, तभी मैं एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। देखो इसने बोला है डिस्क्राइब गॉफ एंड फॉग whenever या wherever is possible for the following function। इनके लिए पॉसिबल होगा तो चलिए बेटा क्वेश्चन उठा लेते हैं।
fx अपने पास कितना दे रखा है, मैं फॉग बता रहा हूं, आप गॉफ बताएंगे। fx अपने पास में कितना है, रूट ओवर x प्लस 3, gx अपने पास में कितना है, gx इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दो पार्टीशन में बांट देते हैं, दो हिस्सों में बांट दिया। क्यों, इसका मैं रेंज अलग निकालूंगा, इसका रेंज अलग निकालूंगा, इसका डोमेन अलग निकालूंगा, इसका डोमेन अलग निकालूंगा, दोनों का डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन निकाल रहे हैं बेटा, डोमेन मतलब x की वैल्यूज यहां पे। तो x की वैल्यूज क्या चूज होनी चाहिए बताओ बेटा। हमेशा हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये हिस्सा आपका किसके अंदर आ रहा है बेटा, ये है डोमेन, ये x प्लस 3, ये हिस्सा x प्लस 3 के अंदर आ रहा है रूट में, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स योर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, -3, दैट मीन्स योर डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। बताओ इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम है भाई? अंडर रूट के अंदर हमेशा जो क्वांटिटी डाली जाती है that is always positive, so we will take x plus 3 is greater than equal to 0 and x is greater than equals to -3, then your domain will be -3 to infinity. Now we will calculate range for this fx, and range would be, ध्यान से देखिए, if we substitute -3 over here, so -3 plus 3 will be your answer equal to 0, and all the values which are greater than -3 will give you always positive results. That means -3 will give you the least value, which is 0, and when we move forward from -3 to infinity, you will always get higher values like 1, 2, 3, 4, and range we can directly describe from here is 0 to infinity. फिर से सुन लो, -3 आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि नेगेटिव पार्ट तो मैं इसके अंदर बना ही नहीं रहा हूं। -3 डाला x की जगह, आंसर कितना आ जाएगा, fx का वैल्यू 0। -3 के ऊपर जो भी वैल्यू डालोगे, लेट्स से -3.1, तो ऊपर मतलब -2.9, तो -2.9 प्लस 3 इज 0.01, 2.8 इज 0.2, तो आपको हमेशा बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएंगी, सारी की सारी बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएंगी, तो रेंज वुड भी कितना हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर fx के रेंज और डोमेन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, चैट में बताइए या हैंड रेज कीजिए। अगर रेंज या डोमेन में कोई प्रॉब्लम है fx के, तो जल्दी, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना यस या डन लिखिए, अपना पेटेंट यही है, यस या डन लिखिए जल्दी। सही है, सही है, सही है। रिपीट कर देते हैं, किसी ने बोला है रेंज वंस अगेन, फिर से सुन लो। देखो, वैल्यूज ऑफ एक्स विल रिप्रेजेंट योर डोमेन, तो रूट के अंदर हमेशा कैसी क्वांटिटी आनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, खत्म। ठीक है, रेंज के लिए हम लोग करेंगे, फॉर रेंज वी हैव आवर डोमेन वैल्यूज -3 टू इंफिनिटी, वी विल सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज वन बाय वन। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट -3, you will get your least value which is 0, तो हमने लिखा 0। अब -3 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, your answer would be always greater than 0, that means if we move rightward to -3, your range, that means values of y will move rightward also from 0, क्योंकि आप 0 से बड़ी वैल्यूज अचीव कर रहे हैं। आपने यहाँ पे 2 डाला तो 2 + 3 √5 आएगा, √5 आपका 0 से बड़ा ही है। आप 3 डालोगे, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6, √6 आपका ग्रेटर ही आएगा। 4 डालोगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा, √7, वो बड़ी वैल्यूज है सारी की सारी, इसलिए ऐसा इसके अंदर देखने को आपको मिल रहा है रेंज वाले केस में। Why can't we take -1? ले लो, -1 + 3 कितना हो जाएगा, √2। रेंज में राधिका -1 कैसे ले सकते हैं, -3 से छोटी क्वांटिटी आप डाल ही नहीं सकते हो, डोमेन आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है। डोमेन तो x की वैल्यू है, तो -3 डालोगे तो आंसर 0 आ रहा है, 0 से छोटा आ ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगा सीधा यहीं पे ही। बोलो दिव्या। नो प्रॉब्लम सर। चलिए,
नेक्स्ट आ जाते हैं gx। अब इसका मुझे कैलकुलेट करना है डोमेन। सबसे पहले डोमेन, डोमेन मींस वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x ऑफ द फंक्शन gx 1 plus x square. So we have to calculate all the values of x which satisfies this relation. That means for those values of x your function would not give you the answer infinity. बस तो gx है 1 plus x square, तो x जो आपको दिया गया है ना बेटा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई भी वैल्यू डालो, जो भी वैल्यू आप इसके अंदर डालोगे, कुछ भी वैल्यू, सिंगल वैल्यू, वो इसको हमेशा पॉजिटिव दे देगा apart from infinity. That means your x belongs to real number. आप 1 डालेंगे तो 1 plus 1 का स्क्वायर, 2 डालेंगे 1 plus 2 का स्क्वायर, 3 डालेंगे 1 plus 3 का स्क्वायर, 4 डालेंगे 1 plus 4 का स्क्वायर, सबका आंसर कितना आ जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा ही आएगा. That means your domain belongs to real number. Domain is real number. Minus infinity to infinity is also right, which also represents real number. Next part is range. What is that range? X plus x square is our function and we have a domain which belongs to R. If we substitute any value from this particular set R in this function, we will always get 1 plus x square as positive values greater than 1. Because आप देखिए, अगर आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया ना यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 0. तो 0 plus 1 कितना हो जाएगा, 1. अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 plus 1 का स्क्वायर 2. आप -1 डालेंगे तो 1 plus -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 plus 1 फिर से 2. 2 डालोगे 2 का स्क्वायर, 4 plus 1 5, -2 डालोगे -2 का स्क्वायर प्लस 1 5. तो इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे. मतलब रेंज कितना हो जाएगा अपने पास में, रेंज मतलब y की वैल्यूज, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1. लीस्ट वैल्यू इज 1 to infinity. We cannot take value from 0 to infinity because x square is always a positive quantity and we add once, when we add 1 in a positive quantity, which is our lowest answer is 0, you will always get your 1 as an answer. ठीक है, तो बेटा सुनो ध्यान से, रेंज तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? x की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और r में आप 0 भी डाल सकते हैं, तो 0 का स्क्वायर इज 0 plus 1, कितना हो गया, 1 से लेके इंफिनिटी. कोई दिक्कत है? नहीं. अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे यार. क्या पार्ट है अपना? हमें बताना है गॉफ. गॉफ का मतलब ध्यान से सुन लो, g of f(x) मतलब g of f(x) अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज है ना, रेंज ऑफ f(x), अगर वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट हो गया, डोमेन ऑफ gx, तो मैं बोलूंगा g ऑफ f(x) आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिफाइन हो जाएगा. तो f(x) कितना दे रखा है आपको, f(x) का रेंज कितना दे रखा है बेटा, 0 to infinity. और gx का डोमेन कितना दे रखा है आपको, x belongs to R. फिर से सुन लो, fx का रेंज कितना दे रखा है, 0 to infinity. और gx का डोमेन कितना दे रखा है आपको, R. इसका मतलब गॉफ इज डिफाइंड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g of fx. दैट मींस g of fx means substitute the value of x, substitute the value of fx at the place of x in the expression gx. मतलब अपने fx की वैल्यू जो आ रही है वो यहां पे x की वैल्यू की जगह पे आप उठा के डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 plus fx, उसका आ जाएगा बेटा स्क्वायर, मतलब 1 plus fx की वैल्यू बताओ बेटा, fx की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, √x plus 3. तो √x plus 3 मैंने fx की वैल्यू उठा के डाल दिया, x plus 3, इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर. आंसर आ जाएगा 1 plus, ये कितना आ जाएगा, x plus 3, which means x plus 4 is the answer g of fx का. If you have any doubts, please raise your hand. If you don't have any doubt, please write
yes or done in the chat option. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप डायरेक्टली यस या डन लिखिए। चलो स्वराज बताओ बेटा, व्हाट इज इट? स्वराज, स्वराज, स्वराज। हाँ ईश्वर, देख लिया मैंने, देख लिया। स्वराज, ये लीजिए। अगर इतना समझ में आया तो सब लोगों को क्या करना है? f ऑफ gx बताना है कि वो डिफाइन होगा या नहीं होगा, और अगर डिफाइन होगा तो आंसर कितना आएगा। f ऑफ gx बताना है कि वो डिफाइन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो f ऑफ gx का आंसर कितना आएगा। सबसे पहले बताइए, डिफाइन होगा या नहीं होगा? यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस और नो। पीयूष सर, गॉफ में नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं कि नहीं? कैसे डाल सकते हैं? एफएक्स का डोमेन चेक करो ना बेटा, एफएक्स का डोमेन, डोमेन ऑफ एफएक्स कितना आ रहा है तुमको? -3। तो एफएक्स में तो डलेगी नेगेटिव क्वांटिटी, लेकिन वो जीएक्स में नेगेटिव आंसर नहीं देगा, क्योंकि एफएक्स का तुमको चेक यही करना है कि एफएक्स का रेंज आपके जीएक्स का क्या होना चाहिए? डोमेन का सबसेट होना चाहिए, बस इतना सा। एफएक्स का रेंज कितना आ रहा है? 0 to infinity। तो जीएक्स का डोमेन कितना आ रहा है? x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, इसका सबसेट हो रहा है, सीधा ये फंक्शन हो गया। अब यहां पे x की वैल्यू कौन सी डलेगी? यहां से वैल्यूज डलेंगी। x की वैल्यूज कहां से चूज करोगे? जो fx में हुआ करती थी, ठीक है। आप -3 डाल सकते हो क्या? आपका क्वेश्चन ये रहेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि fx का डोमेन से ही तो रेंज आएगा। तो रेंज आपका 0 to infinity आ रहा है, आप -3 डालो, देखो आंसर आ रहा है। -3 + 4 कितना हो जाएगा? 1। क्या 1 इसका रेंज का पार्ट है क्या जीएक्स का? बिल्कुल है यार, आएगा ही आएगा। चलिए सामने देखिए, जिन लोगों को गॉफ फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग सामने देखेंगे। बेटा फिर से देखो, जीएक्स का रेंज, जीएक्स का रेंज आ रहा है 1 से इंफिनिटी। एफएक्स के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, और डोमेन कितना आ रहा है? -3 to infinity। यस, फॉग इज डिफाइंड। फिर से देखो, -3 आ रहा है यहां पे, इंफिनिटी आ रहा होगा यहां पे, 1 आ रहा है यहां पे। तो देखो रेंज, जीएक्स का रेंज आ रहा है 1 से इंफिनिटी, एफएक्स का डोमेन आ रहा है -3 से इंफिनिटी। तो बेटा ये सबसेट हुआ ना। देखो 1 से इंफिनिटी छोटा है, -3 से इंफिनिटी के बीच में आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब f ऑफ gx डिफाइन रहेगा। अब f ऑफ gx कैलकुलेट कैसे होगा? जहां जहां भी fx में x है वहां आप gx डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा gx प्लस में हो जाएगा 3, ये हो गया आपके पास में। अब gx का फंक्शन उठा के डाल दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 1 + x² प्लस में कितना है? 3, मतलब x² + 4, ये मेरा f ऑफ gx आ जाएगा। अगर किसी को चैट में यस या डन लिखिए। अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, डाउट पूछिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यार, फिर अपनी स्टोरी टाइम हो गया। आप एनसीईआरटी की जो 1.3 एक्सरसाइज है वो लगाना शुरू कर दीजिए। उसमें सिर्फ इनवर्स वाला सेक्शन आप नहीं लगा पाएंगे, बाकी आपका काफी पोर्शन उसमें हो गया है। आप सिर्फ उसमें इनवर्स वाला सेक्शन अभी नहीं लगा पाएंगे। तो होमवर्क एक बार देख लीजिए आप लोग, कितना है आपका?
ये होमवर्क है एक्सरसाइज 1.3 NCERT। एक्सरसाइज 1.3 NCERT। आप सिर्फ उसमें इनवर्स वाला नहीं कर पाएंगे, बाकी कर पाएंगे। हाँ भाई चारुलता, दिस मेथड विल इज सेटिस्फाई फॉर ऑल फंक्शंस। सिर्फ गॉफ और फॉग में एक ही चीज याद रखनी है। आप सब लोगों को मैं फिर से हिंट दे रहा हूं, जब भी गॉफ और फॉग निकलवाएगा ना, अगर उसने ये पूछा है आपसे कि इज दिस डिफाइंड, तो ऐसे केस में आपको चेक करना पड़ेगा जो अंदर वाला फंक्शन है ना, उसका रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। बस ये आप मूल मंत्र बना लीजिए अपना, क्या कि gx का रेंज fx के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, या g ऑफ fx निकलवाया है तो fx का रेंज gx के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो इसमें एक प्रॉपर्टीज बतानी है मुझे, एक दो, वो प्रॉपर्टी के बाद में हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे यार। देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, यहां देखो ध्यान से। जनरली गॉफ और फॉग, सब लोग देखो, सब लोग सामने देखो। जनरली होमवर्क दे दिया है लड़के मैंने, ये रहा एक्सरसाइज लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का। जितना मैक्सिमम आपसे हो जाए, एक आध दो इनवर्स के क्वेश्चन है वो ना करो, बाकी कॉम्पोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन आप लगा लेंगे। कल इनवर्स खत्म हो जाएगा पूरा। हाँ स्टोरी में आ रहा हूं, पहले एक बार ये दो प्रॉपर्टी बतानी है मेरे को। जनरली क्या होता है बेटा, ये गॉफ और फॉग दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। यहां भी देखो, आपने गॉफ और फॉग कैलकुलेट किया था ना, तो फॉग का आंसर कितना आया था और गॉफ का आंसर कितना आया था। गॉफ आया था मेरे पास x+4, जबकि फॉग आया था मेरे पास √x² + 4। तो यहां से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि इन जनरल fog x एंड gauf x आर नॉट इक्वल। fog x एंड gauf x आर नॉट इक्वल, ये इन जनरल होता है, ठीक है। इन जनरल fog x एंड gauf x आर नॉट इक्वल, ठीक है। यही उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना। सेकंड, बस अभी सुना रहे। सेकंड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी शीट में काफी इस्तेमाल होगी, इसलिए आप लोगों को याद रखनी है कि अगर मैं एसोसिएटिविटी लगा दूंगा, एसोसिएटिविटी होती है बेटा तीन फंक्शंस पे, f ऑफ g ऑफ h या fog ऑफ h, f ऑफ gauch या fog ऑफ h, ये दोनों बराबर आंसर देंगे, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने x+1 लिया, gx मैंने x लिया और hx मैंने ले लिया x² - 1। तो f ऑफ g ऑफ h का क्या मतलब हो जाएगा बेटा, पहले g ऑफ h निकाल लेते हैं। g ऑफ hx कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें डेफिनेशन चेक करनी है क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि सब डिफाइंड है। अगर डिफाइंड नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। अभी के लिए मैंने जस्ट एग्जांपल लेने के लिए बोल दिया है, सब कुछ डिफाइंड है। तो g ऑफ hx कितना हो जाएगा बेटा, hx को उठा के g में डाल दो, कितना हो जाएगा ये आपका x² - 1 ही आ जाएगा। देखो ना, h को डाला x की जगह और hx की वैल्यू कितनी थी, x² - 1, तो x² - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, f ऑफ g ऑफ h के बारे में बात कर लेते हैं। तो x की जगह पे g ऑफ h जाएगा, ये g ऑफ h + 1 आएगा। g ऑफ h की वैल्यू कितनी है, x² - 1 + 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x²। अब अगर ये आया मेरा f ऑफ g ऑफ h, अगर बाई चांस फॉग निकाला हमने, उसका h के साथ निकाला कंपोजिट फंक्शन, तो क्या आंसर आएगा। तो पहले फॉग निकाल लेते हैं यार, मतलब f ऑफ gx निकाल लेते हैं, मतलब ये f के अंदर gx चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, x+1 आ जाएगा, ठीक है। x+1 आ जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो f ऑफ gx का x+1 आया ना, इसका h के साथ निकाल रहे हैं, मतलब ये फॉग का जो भी आंसर आएगा ना, उसमें एक ये इसकी जगह पे कितना डाल दो, h डाल दो। या मतलब फॉग को अगर आप px ले लो तो ये हो जाएगा p ऑफ hx, मतलब p ऑफ hx, मतलब p ऑफ x में जहां भी x आ रहा है वहां hx डाल दो,
तो ये एच एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये वाला पहले वाला भी एच स्क्वायर आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें वैलिड हो सकती है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। ये प्रॉपर्टीज का यूज करके आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष, बताओ बेटा। आयुष, 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 अभी रुक 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 आयुष, अभी रुक, मैं सर से। आयुष, हाँ भाई, जिसको ये लास्ट वाला पोर्शन समझ नहीं आया ना वो ध्यान से देखो। इसने बोला था कंपोजिट मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। ऊपर वाला बराबर नहीं है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पे दे दिया है, यहां पे। ठीक है, इन जनरल, लेकिन एक्सेप्शंस है यार इस केस में, इस केस के एक्सेप्शंस हैं और वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन अभी के लिए मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास एक एफ एक्स था, एक जी एक्स था, एक एच एक्स था, मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालना था। तो मैंने क्या किया बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एच जब निकालना था ना तो मैंने इसको एफ ऑफ जी ऑफ एच लिखा। यहां पे मैंने सबसे पहले जी ऑफ एच निकाल लिया क्योंकि वही अंदर सब्सटीट्यूट होना है। तो मैंने जी ऑफ एच एक्स निकाला, मतलब जी ऑफ एच एक्स, तो एच एक्स की वैल्यू जी में उठा के डाल दी। यहां पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की जगह, तो एक्स की जगह डाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब जी ऑफ एच एक्स को उठा के किस में डाल दिया, एफ में डाल दिया। एक्स की जगह पे जी ऑफ एच एक्स आ जाएगा, उसका आंसर कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 ने एक दूसरे को काट दिया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं इस पे, एफ ऑफ जी ऑफ एच पे, तो ऊपर वाले का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले का निकालेंगे, पहले फॉग निकाल लेते हैं बेटा। तो एफ ऑफ जी एक्स मैंने निकाला, उसको मैंने एक नया फंक्शन बोल दिया पी एक्स। उसका रीजन सुनो, क्योंकि तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि फॉग में इस एच एक्स को डाले कैसे। तो मैंने इसको एक नया फंक्शन बोल दिया पी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना हुआ, जहां भी एफ एक्स में एक्स है ना वहां जी एक्स डाल दो। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स गया एक्स की जगह पे, आंसर आ गया एक्स प्लस 1। अब मैंने फॉग की जगह पे डाल दिया पी, ताकि आपको आसानी से पी ऑफ एच सॉल्व करना पड़े। और पी ऑफ एच का मतलब है पी के अंदर एच एक्स, और एच एक्स जो भी है वो मतलब क्या करना पड़ेगा, जहां भी पी एक्स में एक्स आ रहा होगा ना वहां एच एक्स डाल दो। तो इस पी एक्स में एच जैसे ही डाला ये हो जाएगा एच एक्स प्लस 1, और एच एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे डाला कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसने इसको काट दिया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहां भी एक्स स्क्वायर आया था, यहां भी एक्स स्क्वायर आया था, इसी को मैंने यहां पे लिखा है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों बराबर आंसर आ गए ना। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं आपसे कि एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ जी ऑफ एच ये सेम आंसर देगा। मतलब तीन फंक्शन है और ये ब्रैकेट पहले लास्ट वाले दो पे लगा है और बाद में पहले वाले दो पे लगा है, तो इसे एसोसिएटिविटी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना बेटा वो आपके एसोसिएटिव नेचर को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। अब अपने पास टाइम बचा नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में अपने को स्टोरी सुनानी पड़ेगी यार। ठीक है, आयुष मैंने अनम्यूट किया था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। आयुष, नेक्स्ट क्लास में मैं सब मतलब कल की क्लास में सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे। आयुष बताओ, आयुष तुमने जवाब नहीं दिया। आयुष, आयुष, आयुष मैंने अनम्यूट कर दिया तुमको, देखो मैं अनम्यूट कर रहा हूं यहां से, तुमने अपने आप को म्यूट कर लिया शायद।
और कोई है जिसको डाउट है यार यहां तक? अनम्यूट कर दिया आयुष, बोलो। हेलो। हाँ आयुष बोलो। हाँ हो गया डाउट सर, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था बराबर। अच्छा हो गया डाउट क्लियर? हाँ हाँ हो गया, यही था डाउट। चलो ठीक है। और कोई किसी को यहां तक डाउट है? यार स्टोरी के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, मेरे को दूसरी क्लास में लॉग इन करना है। आप प्लीज डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि 12:30 मेरी क्लास है। मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा यार।